Hello, dear children. Today we will start our lecture by the revision of lectures 1 and 2. So, the chapter Current Electricity is going on, and as concerned with the Maharashtra board, it is in class 11th as well as in class 12th. But as we take just CBSE board, it is in class 12th. Okay, so previous lecture was based on first the current is defined as the rate of change of or rate of flow of the charge या आप सिर्फ बोल सकते हैं I equals to Q by T and if we consider the quantization of charge तो Q के प्लेस पर आप ले सकते हैं N into E divided by T where N is an integer कि किसी भी एक बॉडी पर इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकते हैं. So if the electrons are there, that body will be negatively charged, and if positive charges are there, that body will be positively charged. Now the second point was current is also defined as limit del T tends to 0 del Q divided by del T. Third point was if we are taking this del T as in the form of differential calculus, then current is also defined as the rate of flow of charge. So suppose we are taking a numerical for it, let Q equals to 5t square minus 10 coulomb charge flows through a wire. Then calculate current in a time of 2 seconds. Note down the question. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि if we consider for the charge is 5t square minus 10 coulomb. तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव मेथड कहाँ लगाना होता है? इट इज़ वेरी सिंपल टू थिंक एज टाइम इंक्रीजेस बिकॉज पूरे विश्व में टाइम ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी रुकेगी नहीं. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे चार्ज भी चेंज होता जाएगा. सपोज वी आर टेकिंग t इक्वल टू 0. तो यहाँ जैसे ही आप t को 0 पुट करते हैं यू गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज एज -10 कूलम. Now if we take time equals to 1 second, then as we put t equals to 1, q equals to 5 minus 10 means minus 5 coulomb. So as we can observe here that the charge flowing is a variable. So if the charge is a variable, obviously current is also a variable because the current is directly proportional to the electric charge flowing in the circuit. So we can have the method of differential calculus. So we write I equals to d by dt of q as q is given in the function of time t, means time wise वो change हो रहा है. So we can put d by dt of 5t square minus 10 equals to. अब बेटा आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स देखे हुए हैं जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है. इफ यू आर नॉट वॉच टिल नाउ you can refer mathematical tools differentiation series. So we can write here d by dt of 5t square minus d by dt of 10. ठीक, अब इसमें से आप कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे. So this is equal to 5 into d by dt of t square minus d by dt. यहाँ तो पूरा का पूरा ही constant है. So the rate of change of a constant is equal to 0.
तो आपके पास सेकेंड टर्म हो जाएगी 0 एंड d by dt of t square is 2t. Now 5 2s are 10. So we get 10t. This is the current. As we had taken the charge in SI unit, so current is also in SI unit. So we can write ampere for the unit of current. Now recheck the question. We had to find the current flowing in a time of 2 seconds. So the value of current will be depending on that time. So when we put time equals to 2 seconds, we get the answer for the current at that instant is 20 ampere. So in this way, the current will change as the charge flowing through the circuit changes. The next topic was the drift velocity. ठीक, अब ड्रिफ्ट का बेसिक मीनिंग हम लोगों ने कंसीडर किया था कांस्टेंट वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। बिकॉज जैसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, इट विल बी बेटर टू रिवाइज ऑल द प्रीवियस पॉइंट्स एज योर कंसेप्ट्स विल बी फिक्स कंप्लीटली फॉर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। न्यूमेरिकल सॉल्विंग विल बी क्वाइट इजी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोगों ने केस 1 कंसीडर किया था when no electric field was applied across the ends of the conductor. So इस केस में माना था हम लोगों ने कि जो आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी that will be equal to 0 because due to the random motion of electrons. The formula for average velocity was 1 upon n summation of all the velocities vi from 1 to n equal to 0. ठीक, तो ये आपके पास में वेक्टर फॉर्म आ चुका था। देन केस 2 टेकन वाज when an external field was applied across the ends of conductor। तो जैसे ही हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, as external electric field is a vector quantity, so it will have a particular direction along the direction of electric force। चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। तो जैसे ही चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, obviously न्यूटन सेकेंड लॉ विल स्टार्ट टू अप्लाई, दैट इज F इक्वल्स टू m into a। सो आप जब यहाँ पुट करते हैं एक्सप्रेशन F upon Q in place of electric field intensity equals to m into a, we get this is also E, then we get the acceleration equals to E divided by m। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको इफ द चार्ज इज यूनिट। अगर हम लोगों ने चार्ज यूनिट ले लिया मीन्स 1 कूलम चार्ज ले लिया, देन इट इज बेस्ट मीन्स फॉर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज we may have A equals to E by m, and if we are taking the charge as an electron means minus of E, then first by mixing this relationship we can have, यहाँ मैंने यूनिट चार्ज लिया अगर, तो ये सिर्फ एम ए हो गया था। ठीक है, तो अब अगर आप दोनों रिलेशनशिप्स को कंबाइन करते हैं मीन्स वी कैन हैव एफ upon Q equals to MA divided by Q. Then by another relationship we may have F equals to E into Q. So E into minus E, and by Newton's second law we may have F equals to M into A. So we can equate RHS of equation number 1 and 2. So ma equals to minus E into E. Therefore, we got acceleration of moving charges as minus E divided by m। फिर हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था
for the drift velocity. So you can refer last lecture, that is lecture number 2, for the detailed studied. तो Vd that is drift velocity का आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका था माइनस E into tau divided by m, where tau was the relaxation time, that is the time between two successive collisions. Then the next expression for drift velocity was also equal to Vd equals to I, that is current, divided by number of electrons per unit volume into electronic charge into the area of cross section of the wire. So by this we can also have current equals to N into E into A into Vd. But always remember that this small n carries the meaning of electronic concentration, means number of electrons per unit volume. Then हम लोगों को एक और फॉर्मूला मिला था इसी टॉपिक में, that was current density. So basically the current density is equal to current flowing through the wire divided by area. ठीक है कि आपके पास करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आया था और इसमें हम लोगों ने एक यूनिट एरिया वेक्टर मल्टीप्लाई किया था टू मेक बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन एज वेक्टर क्वांटिटी एंड देन वी गॉट अनदर रिलेशनशिप current density equals to n e square into tau into electric field divided by the mass of the electron. Therefore, we also got conductivity equals to Ne square tau divided by m. So this is all over the revision of previous two lectures. Now we will be doing some problems based on these topics. So check the first problem on the screen. This problem is taken from the courtesy of Maharashtra State textbook. Check the question. A metallic wire of diameter 0.02 meter. So first data given is D equals to small d equals to 0.02 meter. So radius equals to diameter by 2, that is 0.01 meter. Contains 10 to the power 28 free electrons per cubic meter. So very finely we know that this is 10 raised to 28 free electrons per cubic meter. So obviously this holds the symbol small n. So this is electronic concentration. So 10 to the power 28 electrons per unit volume, that is per meter cube. Find the drift velocity for free electrons. So Vd is unknown here, having an electric current of 100 ampere. So I equals to 100 ampere and given charge on an electron as 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, so आपको यहाँ drift velocity find करना है. So basic formula apply कर देंगे. तो problem तभी बनता है बेटा जब आपको formula अच्छे से learn हो. So just keep on revising the things, revising the previous points every time when you are going to sit for the new study of any chapter. This is applicable in every subject of science. So we have got the expression for drift velocity as I upon N E A. So you can put the values 100 upon 10 to the power 28 into 1.6 into 10 to the power minus 19, and because the wire is considered in the form of a cylinder, so area is equal to pi r square. So this is 3.14. R square means 10 to the power minus 4
meter square because R was 10 to the power minus 2 meter. So we may have area as 3.14 into 10 to the power minus 4. And all we have taken SI units. Therefore, after solving this, we will be getting the unit of drift velocity as meter per second, and the answer of drift velocity is 1.9 into 10 to the power minus 4. You can cross check for calculating the answer as 1.9 into 10 to the power minus 4. So take a 30 seconds gap and calculate by yourself. I am waiting for you. Now check next question. A copper wire of radius 0.6 millimeter carries a current of 1 ampere. So data given in the question are, this is R but it needs to be converted into meter. So small r is 0.6 millimeter को आप 10 to the power minus 3 मीटर से convert करेंगे. Current is given as 1 ampere. So this is I. Assuming the current to be uniformly distributed. तो ये word काफी important meaning carry करता है. That you have to take over here the concept of current density. कभी भी आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेते थे हम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, surface charge density and volume charge density. But current density we mainly take only of one type, that is current density J equals to current upon area. So हमें J का magnitude निकालना है. Check the last part of the question. Find the magnitude of current density. So we have to find the value of J. So the expression for current density J is current divided by area. Now wire is assumed to be cylindrical unless given. So area के place पर pi r square. Now put the values. Current is 1, SI unit C है, pi is 3.14 and radius square is 0.6 into 10 to the power minus 3 meter का square. तो आप इसको जब solve करेंगे, this is equal to 1 upon 3.14. इस पूरे power को मैं एज्यूम कर सकती हूँ 6 into 10 to the power minus 4 का square, and when you will be solving this completely you will get the answer as 0.884 multiplied by 10 to the power 6. यूनिट्स चेक करो, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. So the answer will be ampere per meter square. So this is the magnitude of current density as we have just taken the quantities in consideration. Now check third solved question. A flashlight uses two 1.5 volt batteries. Means given that this is V, to provide a steady current of, steady current means constant current. So you may note down the meaning of steady word. Steady word का meaning होता है constant. तो ड्यू टू दीज टू बैटरीज सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.5 एम्पियर. सो वी कैन हैव इन द गिवन डेटा V equals to 1.5 volt and current I equals to 0.5 ampere. Determine the resistance of the glowing filament. So we have to find the resistance. As in the last lecture, we have also studied Ohm's law. So Ohm's law से आपके पास R का expression आता है V upon I.
So just put the value. Simplest question है based on Ohm's law. So it is 0.5. Sorry, this is 1.5 because the value of V is 1.5. The value of current is 0.5 एम्पियर. बट यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं. टू 1.5 वोल्ट बैटरीज मीन्स दो सेल्स इस तरह से, एक एक सेल का वोल्टेज है आपके पास 1.5 वोल्ट. सो ये बन जाता है बैटरी. तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज आएगा, टोटल वोल्टेज दैट विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5, सो इट इज 3 वोल्ट. तो अगर आपको यहाँ बोला जाता डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट ड्यू टू ईच बैटरी, तो हम यहाँ पर सिर्फ 1.5 अप्लाई करते. बट आपको यहाँ बोला है कि पूरे रेजिस्टेंस का, आप पूरे ग्लोइंग फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालो. तो आपको टोटल EMF लेना पड़ेगा which is equal to 3 volt divided by 0.5 ampere. Now by the unit volt upon ampere, the SI unit of resistance is ohm. So this answer comes as 30 by 5 ohm. Hence the resistance of the glowing filament is 6 ohm, which is the final answer. Now, this next question is taken from NCERT 12th class part 1. So NCERT के problems का, numericals का एक बहुत अच्छा point होता है that they are always conceptual as well as उनमें प्रॉब्लम का जो लेंथ है वो काफी बड़ा होता है, बट कंसेप्ट्स बहुत सारे होंगे और प्रॉब्लम इजी होगा. सो डोंट बी अफ्रेड बाय द लेंथ ऑफ द न्यूमेरिकल. सो चेक करते हैं न्यूमेरिकल क्या है. एस्टिमेट, ए पॉइंट है इसमें, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर. सो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ड्रिफ्ट स्पीड means Vd subscript of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area is given. So this is capital A equals to 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. So I is 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. अब ये आपके पास मेन कंसेप्ट है कि इन्होंने आपको बोला हुआ है each copper atom can contribute roughly one conduction electron. तो जितने भी एटम्स होंगे हमें कंडक्शन के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. Next point is the density of copper is 9 into 10 to the power 3. So density का symbol rho, 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, and its atomic mass is 63.5 U. तो atomic mass को हम assume करते हैं ग्राम में. So this will be 63.5 multiplied by 10 to the power minus 3 kilogram. कन्वर्ट कर दिया SI में. सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है हमें, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विथ. अब दो केसेस में हमें उसको कंपेयर करना है. पहला थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड सेकेंड स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर which causes the drift motion. तो ये दोनों पॉइंट्स को हम बाद में लेते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टारगेट है फॉर एटॉमिक मास, लेट आई एम टेकिंग ए डैश, नहीं तो ये दोनों सिंबल सेम हो जाएंगे. तो फर्स्ट केस में हमको फाइंड करना है ड्रिफ्ट स्पीड
as we know the expression for drift speed as I upon n e a। तो इसमें से क्लियरली आपको क्या क्या पता है? करंट आपको नोन है 1.5, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें नोन होता है, एरिया हमको नोन है 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये तीन क्वांटिटीज आपको नोन है। बट टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, बिकॉज जो गिवन डेटा है आपको कि 1 कॉपर एटम से हमको मिल सकता है 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन एज्यूम नंबर ऑफ कॉपर एटम्स की नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे। तो अगर आप निकाल लेते हैं नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर। सो हम चेक करते हैं डेंसिटी से। चेक द डेंसिटी, बिकॉज द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट्स चेक कर लेंगे अब। सो वी मे हैव दैट 1 cubic meter of copper has a mass of 9 into 10 to the power 3 kg, because this was the density। एक बार और देख लेते हैं। Density equals to mass upon volume. This is given as 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube। तो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास है 9 into 10 to the power 3 kg। ठीक है, अब एवोगैड्रोस नंबर नोन है आपको, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन डालेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। इसमें 6 into 10 to the power 23 कॉपर एटम्स का मास है 63.5 into 10 to the power -3 kg। हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था एटॉमिक मास को किलोग्राम में। सो वी में है number of atoms per unit volume as Avogadro's number divided by एक एटम का मास multiplied by check this 1 वॉल्यूम में कितना मीन्स 1 मीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है 9 into 10 to the power 3। So this we will be getting 8.5 multiplied by 10 to the power 28 atoms per meter cube। So this we have got the value of small n। अब लगा सकते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन I upon n e a। Put all the values and check whether you gain the answer as 1.1 into 10 to the power -3 meter per second। So as 10 to the power -3 मीटर आपके पास होता है मिलीमीटर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर आता है हमारे पास मिलीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी in a conductor at room temperature। So this is of the order of 1 millimeter per second। Now we are going to solve question number B, that is B part of the given question। So have a look back at the question again। So I have taken B part of the question here again, in which we have to compare the drift speed obtained with, दो केसेस में आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट है आपके पास थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ऑर्डिनरी टेम्परेचर हम लेकर चलते हैं रूम टेम्परेचर, दैट इज 300 केल्विन।
and second, speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. So electric field जब भी आप consider करते हैं, so you take the speed of electrons moving along the conductor as the speed of electromagnetic waves. जैसे लाइट वेव्स को हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड आप रिकॉल करो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स. दिस इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो आपको यहाँ दो केसेस कंपेयर करने हैं बेटा, Vd1 upon Vd2. Vd1 means a drift speed obtained with respect to the thermal speed at ordinary temperature. तो जिसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं अंडर रूट ऑफ के बी. इसमें से कुछ बातें आपके लिए नई हैं तो उनको आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे. डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. जैसे यहाँ आपके लिए एक न्यू डेटा है के बी, जिसको आप पढ़ चुके हैं काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में, जो कि एनसीईआरटी के पार्ट 2 में है. सो दिस इज टेकन एज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट and its value in SI system is 1.38 into 10 to the power minus 23. नोट कर लेंगे मीटर स्क्वायर kg kilogram per second square into Kelvin. This is the SI unit of Boltzmann's constant. The value of temperature we are taken as 300 Kelvin and mass आपको given है 63.5 into 10 to the power minus 3 when we take this mass in kilogram. So जब हम इस वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, we find this value, we get it as the ratio as, आप डिनोमिनेटर में तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे और यहाँ पर आपको जो आंसर मिलता है 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड मिलता है आफ्टर सॉल्विंग. सो वी गेट दिस आंसर जब हम पावर को चेक करेंगे, बिकॉज कंपैरिजन में मेनली आपको बताना होता है कि व्हाट इज द नेट पावर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसको आप बोलते हैं 10 का नियरेस्ट पावर. सो द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 इज minus 3 minus 8. So this comes around as 10 to the power minus 11 and the units meter per second will cut down. So what do we compare? कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd1, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब हम कंपेयर करेंगे उसको, तो वो करीब करीब 10 to the power minus 11 टाइम्स है. So it is very small as we compare it with the help of electric field provided. क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अल्टीमेट जो वेलोसिटी होगी that will be equal to the speed of electromagnetic wave, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next new topic we are going to take as mobility. तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं. इसके लास्ट में आप देखें ITY means obviously this is a property. So ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है आपके पास कंडक्टिविटी से, कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी किससे अराइज होती है. सच एज इफ वी कंसीडर मेटल्स, तो मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर्स होते ही हैं. ठीक है, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज भी है बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Now we take next example as an ionized gas. ठीक है, अब एक ionized gas में जो कंडक्टिविटी या मोबिलिटी होगी that will be due to electrons and positively charged ions.
ध्यान रखेंगे आप, आयंस मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो चुका है। एंड थर्ड, वी टॉक फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्ट मिक्स किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी जो कंडक्टिविटी का रीजन है दैट इज द नेगेटिव आयंस as well as positive ions। ठीक, तो इस बेसिस पर हम एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज मोबिलिटी और शोन बाय द लेटर म्यू से शो करेंगे। इसका बेसिक डेफिनेशन आता है आपके पास, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field. This is main formula of mobility. I revise. Mobility is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Means आप जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, what is the increase in the drift velocity, and the magnitude means it will always carry the positive value। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो इन दोनों में रेशियो को ही बोल देंगे आप मोबिलिटी। अब हम लोग पुट करते हैं v d की वैल्यू as we have derived already that drift velocity is equal to E into electric field into relaxation time divided by mass। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में we get mobility equals to vd की वैल्यू डाल दी E tau upon m into E, denominator में into E. So E is cut, therefore we get mobility is equal to electronic charge into relaxation time divided by the mass of the electrons। अब निकालते हैं हम लोग इसकी SI unit and practical unit। So when we take SI unit of mobility, by the simple formula, the magnitude of drift velocity upon electric field, we get the SI unit of drift velocity as meter per second और E के लिए आप यूनिट लेते हैं वोल्ट पर मीटर। So this meter will go in numerator and it makes one SI unit as मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। ठीक है, ये आपको मिल जाती है एक यूनिट। एंड इफ यू कंसीडर द प्रैक्टिकल यूनिट, though obviously practical unit of drift velocity in the case of electrons is taken as the centimeter per second, तो आप सिर्फ इसको रिप्लेस कर दो तो यहाँ आ जाएगा मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल तो हम वोल्ट में ही लेंगे और टाइम की यूनिट हम सेकेंड में लेंगे। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाउ है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम और इट इज द एवरेज टाइम between two successive collisions। Next topic we are going to study as limitations of Ohm's law। ठीक, तो मतलब ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पर ओबे नहीं होता है या फिर ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो इस रिलेशनशिप दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को ओबे नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। लेट दिस इज अ कंडक्टर। हम पहले कंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं जिसके दो फ्री एंड्स हैं आपके पास A एंड B। अब इन दोनों एंड्स को आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, सेल में ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो दिस इज प्लस एंड इट इज माइनस। तो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो स्टार्ट होगा वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से होता है हमेशा। तो यहाँ से आगे आपके पास में Q प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्जेस। और जो इस मेटल के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो सपोज हम इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करें ई माइनस से डॉट ई माइनस, तो दे विल बी एक्सेलरेटेड, जिनका हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है बाय द फॉर्मूला F अपॉन m, और F के प्लेस पर हम लोगों ने लिया था E इंटू ई अपॉन m। तो इनका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव चार्जेस के अपोजिट होगा, मींस इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया V, A और B के बीच में, और इसलिए करंट का मैग्नीट्यूड आया आपके पास I। अब जैसे जैसे आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, V को बढ़ाते जाएंगे, करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब जरूरी नहीं है कि इस पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़े। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। सो लेट्स स्टडी द टॉपिक इन डिटेल। Ohm's law is obeyed by various materials and devices. बहुत सारे materials और devices Ohm's law को obey करते हैं. So the devices for which potential difference versus current curve means graph is a straight line passing through origin inclined to V axis, that is voltage axis, are called linear devices और ओमिक डिवाइसेस। तो आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, डिफाइन लीनियर डिवाइसेस और ओमिक डिवाइसेस। सो दिस विल बी द डेफिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंडिंग ऑन दिस पॉइंट। Resistances of these devices is constant because आपको उनका रेजिस्टेंस मिल जाएगा V अपॉन I। तो आप जब भी इस ग्राफ को चेक करेंगे, दिस इज V एंड दिस इज I, और वी कैन टेक वाइस वर्सा, मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट स्लोप लेने के लिए y एक्सिस पर V और x एक्सिस पर I ले सकते हैं। तो दिस इज अ ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब किसी भी एक पॉइंट पर जब आप चेक करेंगे द वैल्यू ऑफ V अपॉन I, दूसरे पॉइंट पर चेक किया द वैल्यू ऑफ V अपॉन द वैल्यू ऑफ I, सो वी आर गेटिंग इक्वल एंगल। ये जो एंगल है वो आपको इक्वल मिलता जा रहा है। So therefore we get the resistance of the material as constant. So resistances of ohmic material or ohmic devices are constant. So several conductors, इसमें metals आएंगे mainly, obey Ohm's law and they follow the linear I-V characteristic, means होता है graph। ठीक, अब हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस लिया है जो कि ओम्स लॉ को पूरी तरह से ओबे नहीं करता, तो इसका ग्राफ तो पास हो रहा है ओरिजिन से, बट आप चेक कर सकते हैं दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये डेविएट हो रहा है। यहाँ पर जो ग्राफ है, तो आपको ये ग्राफ ऐसा मिल रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस, और इनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो यू मे नोट डाउन न्यू क्वेश्चन, डिफाइन नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। So the devices for which the IV curve is not a straight line as shown in figure are called non-ohmic devices. Obviously non-ohmic बोल रहे हैं आप, so they do not obey the Ohm's law and therefore the resistances of these devices is a function of V और I। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, जंक्शन डायोड्स, थर्मिस्टर्स एक्सेट्रा। तो ये सब बातें आप बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये कॉन्सिक्वेंस में चैप्टर्स में आती जाएंगी। सो बिकॉज हम यहाँ पर R इक्वल्स टू V अपॉन I रिलेशनशिप नहीं लगा रहे, बट डायमेंशनली तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के रेशियो के इक्वल ही होगा। सो ओवर हियर वी कैन टेक न्यू फॉर्मूला एज
resistance of non-ohmic devices is limit del I tends to 0, del V upon del I. So we can take the resistance of the conductor in the form of the derivative of potential difference with respect to the current. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हो सकता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर कुछ ऐसा गिवन हो, सपोज 4i² +2, तो फाइंड रेजिस्टेंस। तो आप सेम डिफरेंशिएशन वे में ही करेंगे क्वेश्चन। सो R इज d बाय di ऑफ 4i² +2। डिफरेंशिएट करना भी सारे बच्चों को आता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, i² का डेरिवेटिव 2i, so this is 8i और 2 का डेरिवेटिव 0 because this is a constant and because it is the resistance so the SI unit will be ohm। ठीक है, सो आपने ये फॉर्मूला ले लिया बेसिक कि R इज इक्वल टू dV अपॉन di। तो ये जो dV है इसकी वैल्यू डिफर करेगी टू वैल्यूज से। फर्स्ट वैल्यू वी में टेक V माइनस डेल V बाई 2 एंड सेकेंड V प्लस डेल V बाई 2 and del I is the corresponding change in the value of the current। अब यहाँ पर आपको दो ग्राफ्स दिखाए गए हैं। एक ग्राफ आप चेक कर सकते हैं। दिस ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। हम अगर y एक्सिस प्लस y एक्सिस में देखें, द यूनिट ऑफ करंट इज मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और अगर हम y एक्सिस में देखें, दिस इज इन माइक्रो एम्पियर। सो माइक्रो एम्पियर इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। और अगर आप यहाँ देखें, सपोज दिस वोल्टेज इज 0.2 वोल्ट प्लस। तो जैसे ही आप पोटेंशियल का साइन डिफर करते हैं, मान लो आपने पोटेंशियल का साइन डिफर किया और यहाँ पर आया पोटेंशियल का साइन -0.2 वोल्ट, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम है बट सिर्फ हम लोगों ने साइन चेंज कर दिए। बट करंट में आप चेक कर सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेस है। ये देखो आपको 0.2 वोल्ट पर करंट मिल रही है और यहाँ जो करंट हमको मिल रही है ये दिस इज इन -0.2 वोल्ट, क्योंकि ये पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो करंट है वो माइक्रो में मिल रही है और ये करंट मिल रही है आपको मिली एम्पियर में। सो करंट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। सो इट इज क्लियर दैट जस्ट बाय चेंजिंग वी डू नॉट गेट प्रोपोर्शनल करंट। तो इट मीन्स हुआ कि जो डायोड है वो एक नॉन ओमिक डिवाइस है which comes in the branch of semiconductors। Next, एक अलग मटेरियल लेते हैं हम which is named as gallium arsenide। ये भी सेमीकंडक्टर टॉपिक्स में ही आता है। गैलियम आर्सेनाइड में भी चेक करते हैं हम कि वी आर टेकिंग, सपोज हमने ये दो करेंट्स लिए, ठीक है, दीज आर टू करेंट्स, दे हैव सेम वैल्यू ऑफ करंट बट अब चेक करो इनके जो पोटेंशियल के वैल्यूज हैं वो अलग अलग है। करंट सेम है, करंट की वैल्यू कोई भी एक करंट की वैल्यू एज्यूम कर लो आप, सपोज आई, तो सेम करंट फॉर टू डिफरेंट वोल्टेजेस, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक, सो दिस material is gallium arsenide which exhibits this type of property that there is more than one value of V for the same current। तो इट मीन्स ये देखो आप V1 से V2 ज्यादा है तो करंट भी बढ़ जानी चाहिए, मतलब ये ग्राफ कंटिन्यू ऐसे जोन में जाना चाहिए, इंक्रीजिंग जोन में, अगर इसके लिए ओम्स लॉ 2 है। बट वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी यहाँ से करंट कम होकर मिल गया आपको। इट मीन्स ये इस रीजन में, ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें स्ट्रिक्टली ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। So again, this gallium arsenide is called as non-ohmic device।
सो नॉन ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, एंड फॉर दैट इफ वी ड्रॉ वी आई ग्राफ it does not pass through origin completely, or if it passes through the origin the graph is not a complete straight line. वो मिक्स पार्ट होगा रेक्टिलिनियर पार्ट का एज वेल एज कर्व पार्ट का. सो ओमिक डिवाइसेस मेनली कंडक्टर्स होंगे और नॉन ओमिक डिवाइसेस आप पढ़ चुके हैं. चेक अगेन व्हाट आर द नॉन ओमिक डिवाइसेस. दे आर द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब्स मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे एनोड एंड कैथोड पर बीच में वैक्यूम होगा, पैक होगी वो डिवाइस. जंक्शन डायोड्स मतलब पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर्स में आता है ये. और थर्मिस्टर्स मींस ऐसे रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यूज टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी. टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ उनके रेजिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे. ये भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही लेटर पार्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द थर्मिस्टर्स. देखो अब हमारे पास है न्यू टॉपिक्स कि हम रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं. तो मेनली अगर हम बात करें कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रेजिस्टर्स की, means the resistors which are used in industries. So they are mainly two types of resistors. First are carbon resistors and second are the wire wound resistors. Obviously जो wire wound name है वो आपको बता रहा है कि these are made by winding the wires of an alloy. जो वायर्स बनी होंगी वो किसी न किसी एलॉय की बनी होंगी मतलब मेटल्स को मिक्स करके, और वो एलॉयज होते हैं मैंगनीन हो सकता है वो, कॉन्स्टेंटन, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर हो सकता है नाइक्रोम. ठीक है. सो ये एलॉयज होंगे या फिर सिमिलर एलॉयज भी हो सकते हैं विच आर बेस्ट फॉर मेकिंग रेजिस्टर्स. सो वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग वायर्स of alloys such as manganese, constantan, nichrome or the similar wires, and the choice of these materials will be dictated by the fact that resistivities of these materials or these alloys remain insensitive to temperature. मतलब जो भी इनकी resistivity रो को हम डिसाइड करें, it should not obey as the function of the temperature. टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी इनसेंसिटिव रहनी चाहिए. इस बेसिस पर हम एलॉय को यूज करेंगे कि आपको वो डिवाइस को कहाँ पर किस जोन में यूज करना है. एंड दूसरे टाइप के मटेरियल्स हैं जो जिनसे हम रेजिस्टर्स बनाते हैं, दोज आर मेड बाय कार्बन, which are also called as carbon composition resistors. ठीक. अब जो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स हैं उनके बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज दीज आर द बिग रेजिस्टर्स, या फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट जो कार्बन कंपोज रेजिस्टर्स हैं मेनली दे आर कॉम्पैक्ट मीन्स बिल्कुल छोटे होंगे. दे आर इनएक्सपेंसिव, इकोनॉमिकली बहुत टॉलरेबल होते हैं वो, एंड हेंस दे फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एंड we show their values by the color code. So, carbon composed resistors are color coded to mark their values in ohms. कुछ 10 ohms से thousands of ohms तक हो सकते हैं उनके values, and the color coding is standardized by Electronic Industries Association EIA ने उनको अप्रूव किया हुआ है. तो इनकी कोडिंग को समझने के लिए एक रेजिस्टर आपको यहाँ दिखाया हुआ है. चेक करेंगे
किसी भी एक कार्बन कंपोज्ड रेजिस्टर पर मेनली आपको मिलते हैं 3 और 4 सर्क्यूलर बैंड्स, रिंग्स मिलेंगे, सर्क्यूलर रिंग्स टाइप. तो वी कैन टेक दैट दिस एज द फर्स्ट सर्क्यूलर रिंग, सेकेंड सर्क्यूलर रिंग, थर्ड सर्क्यूलर रिंग एंड फोर्थ सर्क्यूलर रिंग. थर्ड और फोर्थ के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्पेस होगा वहां पर, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि जिस एंड के बिल्कुल पास में बैंड स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू बैंड्स हैं, 2 या 3 कंटिन्यू बैंड्स हैं, आप उस एंड को लेफ्ट एंड एज्यूम करेंगे, मीन्स जहां से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट बैंड का कलर देखेंगे, उसके लिए डिजिट पुट कर देंगे. अभी हम लोग नीचे देखेंगे कलर कोड का चार्ट कैसा है. फिर आप सेकेंड बैंड का कलर देखेंगे, उसके लिए आप सेकेंड डिजिट लिख देंगे. थर्ड बैंड का कलर देखकर उसके लिए आप डेसिमल मल्टीप्लायर लिखेंगे, मीन्स 10 रेज टू सम पावर. एंड कुछ स्पेस पर जाकर जो फोर्थ बैंड बनाया हुआ है उसका कलर देखेंगे और उससे आप डिसाइड करेंगे टॉलरेंस, मींस परसेंटेज. नाउ द इजी बाइट्स फॉर दिस टॉपिक इज, आप जो कलर्स को लर्न करेंगे वो शॉर्टकट रहेगा बी रॉय, GBVGW. इसको आप इजी बाइट्स में लर्न करेंगे. बी रॉय ऑफ ग्रेट, B for Britain, had a very good wife. ठीक है, मीन्स इसको ऐसे याद रखेंगे आप कि ग्रेट ब्रिटेन के एक पर्सन थे बी रॉय, he had a very good wife. तो आपको फर्स्ट लेटर से कलर्स ध्यान में रहेंगे. So I recall again, B रॉय of Great Britain had a very good wife. इससे आप लर्न कर लो पहले. अब कलर्स देखो आप, B से ब्लैक, इस B से ब्लैक, फिर B से ब्राउन, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, then from this G, green, B means blue, B means violet, this G means gray, and this last W means white. So as we are going down in the chart, the colors are going lighter and lighter. अब चेक करेंगे आप फर्स्ट डिजिट, जो आपको फर्स्ट बैंड मिलेगा, डिजिट स्टार्ट होती है 0 से एंड इट गोज अप टू 9. Second digit also starts by 0 and goes up to 9. Decimal multiplier are taken according to the digits. So 10 to the power 0 multiplier है. Obviously आप दोनों digits से जो एक 2 digit number बनाएंगे उसमें इसको multiply कर देंगे. So this is multiplication sign every time. और लास्ट में आपके पास आता है टॉलरेंस. ठीक है, तो अगर आपको फोर्थ बैंड के प्लेस पर ब्राउन और रेड बैंड मिलता है तो उनके टॉलरेंसेस होंगे ±1% और ±2%. दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन. अदरवाइज हमको फोर्थ बैंड का कलर मिल सकता है ईदर गोल्ड, जिसका टॉलरेंस होगा ±5%, या आप डायरेक्ट डेसिमल मल्टीप्लायर ले सकते हैं 10 to the power -1. सिल्वर बैंड के लिए टॉलरेंस परसेंटेज है ±10%, and if no color is present in the case of fourth band, then tolerance percentage is ±20%. But
अगर आपको थर्ड बैंड के केस में गिवन है गोल्ड और सिल्वर, then you have to take decimal multiplier as 10 raised to minus 1 and 10 raised to minus 2. Now, let's take one example which is taken from NCERT. सबसे पहले ये दोनों के प्लेसेस में आपको डिजिट्स लिखने हैं। यहाँ आपको लिखना है डेसिमल मल्टीप्लायर और यहाँ आपको लिखनी है टॉलरेंस बैंड की वैल्यू। सो गो बैक इन द चार्ट फॉर रेड कलर, check this. For red color we get 2 2 and for third, that is decimal multiplier, again red. So we can write the answer for resistance as इन दोनों से डिजिट बन जाएंगे। इससे बनेगा 10 टू द पावर 2 एंड सिल्वर से बनेगा फोर्थ बैंड के प्लेस पर है प्लस माइनस 10%। तो इससे आप एक 2 डिजिट नंबर बना देंगे विच इज 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10% and SI unit of the resistance is ohm. Now we are taking next example, yellow, violet, brown, gold. तो सबसे पहले आप येलो एंड वॉयलेट के डिजिट्स चेक कर लो। येलो का डिजिट है 4, वॉयलेट का डिजिट है 7। तो इससे एक नंबर बन जाता है आपके पास 47 और ब्राउन का आप डेसिमल मल्टीप्लायर चेक करो, दिस इज 10 raised to 1. So we can write the answer as 47. इससे बनेगा 47 into 10 raised to 1 and gold का tolerance percentage है plus minus 5% and the SI unit of all value is ohm. Now we are taking a reverse question. Check this question. We have to find the color code of resistor जिसके बैंड्स हैं येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, गोल्ड। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में लिख लेंगे जो इजी बाइट्स लिया था हम लोगों ने, B.B. रॉय of Great Britain had a very good wife. स्टार्टिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now check for yellow. For yellow we get 4. So this is 4. Then for violet we get 7. So this is 47. For orange we get 3. So this will be decimal multiplier and for gold plus minus 5% and the answer is in ohm. अब सपोज आपको वैल्यू गिवन हो, ठीक है, लेट्स राइट अ क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज 34 into 10 to the power 6 plus minus 20% ohm, then find its color code. रिवर्स क्वेश्चन 3 के लिए आप चेक करेंगे, फॉर 3 we get orange, for 4 we get yellow, for 10 raised to 6 we get blue and for plus minus 20% we get no color. So because tolerance band था वो, तो आपको जो कलर बैंड्स मिलेंगे उनके सीक्वेंस होंगे, सबसे पहले ऑरेंज, then yellow, then blue. So these three colors will be making this resistor given in the question. So by this we end the lecture. Again, whenever you will sit for study of current electricity, start the chapter from very beginning, that is 0 point. In this way you will get expertise in the chapter. Thank you.